Good evening, everyone. Good evening. Welcome to the session. So, if you remember in the last class, quadratic equation. So, one of the most important part that comes handy in solving problems in physics, and that of standard 9th and 10th level, is solving linear equation in two variables. So this is a section I'm pretty much sure most of you are aware of all the methods that we deal in standard 9th and 10th level. Solving linear equation in two variables. मैं कुछ चीजों के नाम ले रहा हूँ. I'm pretty much sure you are aware of that. Elimination method. याद है? Substitution method. To solve linear equation in two variables. Right? बहुत ज़्यादा काम आता है. In fact, मैं आपको बता दूँ कि you should have the capability to handle 3 equations, 3 unknowns. ठीक है. तो कुछ बेसिक अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट समझते हैं. पहली बात, क्या आप ये समझते हो कि इफ वी हैव 3 unknowns, 3 क्यों? इफ वी हैव n unknowns to be determined, if we have n unknowns to be determined, then we need n equations. क्या ये आप समझते हो? अगर हमारे पास सपोज 2 अननोन है, we will require 2 equations to solve for those unknowns. अगर हमारे पास 3 unknowns है, we require 3 equations to solve for those unknowns. क्या ये बेसिक अलजेब्रा आपको समझता है कि जितने unknowns है उतने हमें नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए टू सॉल्व फॉर दोज unknowns. जितने अननोन है उतने हमें इक्वेशंस चाहिए टू सॉल्व फॉर दोज unknowns. When I say solve for, what is the meaning of it? What is the meaning of solving an equation? When I say solving an equation, it means to find out unique values of the variables that would satisfy that particular equation. That is the meaning of solving an equation, right? Correct. Finding value of unknown. So finding value of unknown is possible when we are having, for example, suppose we are having 2 unknowns, so we should have 2 equations. अब ये चीज देखो, आप ये फील करो, जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, क्या आपको 2 इक्वेशंस दिए जाते हैं और उनको सॉल्व करके आपको अननोन की वैल्यूज निकालनी होती है. अगर 3 इक्वेशंस होते हैं तो सॉरी 3 अननोन्स होते हैं तो आपको 3 इक्वेशंस दी जाती हैं टू सॉल्व फॉर द अननोन्स. क्या मेरी बात समझ में आएगी? अब याद करो, एक एस्पेक्ट होता है वर्ड प्रॉब्लम्स, जो आप स्टैंडर्ड 9th 10th 8 9 10th में बहुत सारा बनाते हो वर्ड प्रॉब्लम. जैसे कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, उसमें completely word problem है. You need to read information which is in form of 4 or 5 lines, and then you need to draw the diagram, and then you need to solve for it, right? Heights and distances याद आ रहा है? अभी जस्ट 9th 10th में आप कर रहे हो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. आईसीएससी वालों ने 9th में भी थोड़ा बहुत किया है, 10th में भी कर रहे हैं. सीबीएसई वालों ने 10th में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस किया है. अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के जो प्रॉब्लम का लेवल आप देख रहे हो, राइट? आप ऐसा सोच लो कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में मिलने वाले हैं. उसी टाइप के मतलब pattern of solving or the method of solving for heights and distances problem and method of solving of physics problem is more or less the same. Means what? देखो, आप heights and distance में क्या करते हो? You read 4 or 5 lines or 6 7 lines. Some informations are given there. You process those information, you convert them into a suitable diagram, and then you find out unknowns, whatever was asked, by applying trigonometry, by applying geometry. So होता क्या है heights and distances में? Heights and distances में mostly you apply trigonometry, because heights and distance trigonometry का पार्ट है, तो mostly you apply trigonometry. बट ऐसा समझिए कि फिजिक्स का प्रॉब्लम कैसा होता है कि आपको 4-5 लाइंस 6-7 लाइंस में 4 to 5 या 6 to 7 लाइंस में एक क्वेश्चन रहेगा. उससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है. 4 to 5 लाइंस या 6 to 7 लाइंस, उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा. क्वेश्चन पढ़ना होगा,
क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक सुटेबल डायग्राम बनाना होगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसको डायग्राम फॉर्म में समझ के रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, और फिर डायग्राम बनाने के बाद उसके ऊपर फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट लगता है वो समझना पड़ेगा, और फिर इट इज मैथ्स 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 मैथ्स, मतलब इट इज ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन or linear equation into variable. It can be anything or a combination of any of these two things or three things. So इस तरीके से आपको सॉल्व करके फिर अपने ऑप्शंस मैच कराने होते हैं. So this is what the process is. तो अगर आप हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम कर रहे हो तो आपको इन अ वे ये फील आ जाएगी कि बेटा जो कॉम्प्लेक्सिटी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के प्रॉब्लम में हमें 9th 10th लेवल में फील हो रही थी, अब 11th 12th में बेसिकली ऐसे ही सब क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस टाइप. ऐसा आपको समझ के चलना है. क्या क्लैरिटी है ये? क्या ये समझा? तो उसमें से एक एस्पेक्ट जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है वो आता है फॉर्मिंग इक्वेशंस. जो भी वेरिएबल्स है उनके बीच में इक्वेशंस बनाना और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना. तो हमें बेसिक अलजेब्रा समझना पड़ता है बिकॉज इसका बहुत ज्यादा यूज होता है. मतलब मैं आपको बोल दूं कि अगर आपके पास 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप ऐसा पकड़ लो कि अराउंड 15 क्वेश्चंस में आपको लीनियर इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे और फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट. So it is having a high weightage. So we should be very much clear कि how to solve linear equations in Fourier. तो जैसे कि मैंने कुछ मेथड लिखे हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब आप स्टैंडर्ड 10th में एक और मेथड पढ़े हो, याद करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. याद है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये भी पढ़े हो आप, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स दैट वी नो फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है. सो कॉन्सेप्ट क्या है देखो, इफ यू हैव n अननोन्स टू बी डिटरमाइंड देन वी नीड n इक्वेशंस. ठीक है, ये समझ में आना चाहिए. तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है. तो हमें अगर किसी भी फिजिक्स के प्रॉब्लम में अगर n फिजिकल क्वांटिटीज दिख रहे हैं जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी है, तो हमें एक बात समझ लेनी है कि हमें n नंबर ऑफ इक्वेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे और उनको सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द अननोन. ठीक है, आइए कुछ बेसिक करते हैं, अपने को क्लैरिटी आएगी. लेट्स स्टार्ट विद समथिंग वेरी फंडामेंटल. Suppose I give you one equation like 2 by 3x minus 4 by 5y is equal to 7. And suppose 1 by 6x plus 2 by 10y is equal to 6. इसको सॉल्व करना है. सॉल्व फॉर द अननोन्स. कैसे करोगे? सॉल्व फॉर x and y. सबसे पहले देखो यहाँ पे दो अननोन्स है x and y, and so we are having two equations to solve for it. अब फिजिक्स में होता क्या है कि ये इक्वेशन आपको फिजिक्स के लॉ लगा के ये दोनों इक्वेशंस आपको खुद बनाने हैं और फिर सॉल्व करना है. So it's one step more where we are not provided with the two equations, rather we have to create those two equations out of the information provided, and then we have to solve for those two equations, right? So let's now deal with the smaller part कि इन equations को solve कैसे करना है. तो ये तो थोड़ा सा टिपिकल इक्वेशन हो गया, आप सब सॉल्व करना स्टार्ट कर भी दिए होंगे. 3 और 5 का पहला इक्वेशन को पहले देखो. ऐसा सिचुएशन में जब भी फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन फॉर्म से इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन फॉर्म से हटाना है, मतलब इसे इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो लेट्स डू इट. 3 और 5 का एलसीएम क्या है? 15. सो इट विल बी लाइक फर्स्ट इक्वेशन विल बी 10x minus 12y equal to 105. क्या ये पहला इक्वेशन बन गया? क्या मैंने सही किया? देखो तो 5 and 3 का एलसीएम क्या है? 15, राइट? तो 15 आ गया, 3 5 10, फिर 10 and 3 12. 10x minus 12y is equal to 105. क्या क्लैरिटी है ये? दूसरे में 6 और 10 का एलसीएम, क्या 6 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30. तो इट इज लाइक 5x plus 6y is equal to 180. Is it 2a? 2 से 2a इक्वेशन निकाला. क्लैरिटी है? जस्ट नेमिंग है. अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एनी वन यू यूज. तो लेट्स गो विद एलिमिनेशन मेथड. क्या मैं x वेरिएबल एलिमिनेट करूं? तो x वेरिएबल अगर मुझे एलिमिनेट करना है, क्या मुझे x का कोएफिशिएंट दोनों में सेम करना है? बेसिक मेथड. तो क्या मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन के दोनों साइड पे? तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा पहला इक्वेशन तो ऐसे ही रहेगा 10x minus 12y equal to 105. लेकिन दूसरा इक्वेशन रह जाएगा 10x plus 12y
इज इक्वल टू 316। अब क्या करूं, क्या इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं? ऐड करने पर क्या करना होता है, ये -12y और +12y, क्या ये दोनों कट जाएंगे? तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड वी आर हैविंग 10x + 10x 20x, 20x इक्वल टू 360 + 105, इज इट 465? 465। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 465/20। तो सॉल्व फॉर इट। 5 4 20 और ये आ जाएगा 5 9 45, 93। तो x की वैल्यू आ गई 93/4। अब ये x की वैल्यू आप पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। डिड यू अंडरस्टैंड इट? सो दिस नीड्स टू बी डन वेरी फास्ट। अब प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा ये सॉल्व तो करता है, बट इफ यू गो विथ अ वेरी स्लो स्पीड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो यू नीड टू गो विथ फास्ट स्पीड, खड़ाखट आपको सॉल्व करना। ठीक है, खड़ाखट आपको सॉल्व करना। दूसरा तरीका क्या होता है कि बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो आप ऑप्शन पुट करके भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड जिस ऑप्शन के वैल्यू पे हो रहा है वो मेरा आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस पुट कर दें और इक्वल टू राइट हैंड साइड जिस ऑप्शन के साथ हो रहा है वही मेरा आंसर है। क्या ये ऑप्शन हम ये ट्रिक हम यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन गोइंग विद द यूजुअल मेथड? बट all these things will come into handy only when you can create these two equations suitably by reading the information that is provided in the question. ये अभी मैं क्वेश्चंस आपके सामने पुट नहीं कर रहा हूं बिकॉज आपको फिजिकल क्वांटिटीज की समझ नहीं है, बट आप ऐसा समझ लो कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि इफ यू आर हैविंग 30 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस या 10 to 15 क्वेश्चंस के बीच में रेंज ऐसा होगा जहां पे आपको ऐसे इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनेंगे, कैसे इक्वेशंस का ओरिजिन होगा वो हम लोग सीखेंगे फिजिक्स में, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करना इज अ बिग बिग आस्क फॉर सक्सेस इन फिजिक्स। if you know how to do this, create equation and solve them, then I'm telling you major hurdle is crossed। मेजर हर्डल, जो मेजर हर्डल है वो क्रॉस हो गया, फिर कोई घबराने की बात ही नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर यहां दिक्कत है देन इट विल हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट इन योर एंटायर फिजिक्स, बिकॉज आप ऑलमोस्ट सभी सवालों में देखना फिजिक्स तो आप अप्लाई कर दोगे बट सॉल्व करना नहीं आता है बोल के आप फंस जाओगे। क्या बात समझी आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? आइए कुछ और सवाल देखो। सपोज आई गिव 6x - 9y इक्वल टू 23 और दूसरा इक्वेशन मैं ले रहा हूं सपोज 12x + 5y इक्वल टू 19। इसको सॉल्व करना है, करो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू नो ऑल दिस थिंग्स, खड़ाखट होगा। 12x - 18y इज इट इक्वल टू 46 और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 12x + 5y इज इक्वल टू 19। क्या मैं दोनों इक्वेशन को साइड बाय साइड सबट्रैक्ट कर दूं? सबट्रैक्ट कर दूं मतलब ऐसा, 12x कैंसिल, -18y, ये -5y, 46 - 19, -18y - 5y is -23y and 46 - 19 is 27, right? या तो y की वैल्यू आ जाएगी -27/23। क्लैरिटी है? तो ये आपकी वैल्यू आई y की, क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो यू नो व्हाट द मेथड इज। सो इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है। अब थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम और देखते हैं। मान लो हमारे पास 3 अननोन्स हैं, सो वी विल हैव 3 इक्वेशंस। अगर हमारे पास 3 अननोन्स है, वी विल हैव 3 इक्वेशंस एंड वी हैव टू सॉल्व देम। लेट्स सी। सपोज मैं आपको बोलता हूं ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ इक्वेशंस बनाई हैं। फर्स्ट
See how many unknowns. X1 is an unknown, A1 is an unknown, A2 is an unknown. ठीक है, X1, X2, A1, A2. So look at the unknowns. ठीक है, so how many unknowns we are having? We are having, if you look at it, we are having इसको मैं ऐसा करता हूं, सपोज ऐसा मैं करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना. So look at this. How many unknowns we are having? X1, 2x1, so it is also x1, a1, a2. We are having 3 unknowns. And look at the number of equation. क्या मेरे को पहला रिक्वायरमेंट क्लियर है मेरा कि अगर मेरे पास n unknowns है तो मेरे पास n इक्वेशन होनी चाहिए टू फाइंड आउट द यूनिक वैल्यूज ऑफ दोज unknowns, राइट? फिर से सुनो, अगर मेरे पास n unknowns है, आई शुड हैव n इक्वेशंस टू फाइंड आउट द यूनिक वैल्यूज ऑफ दोज unknowns, राइट? So now look at this, and what I have given you is a direct lift case from one of the problems of physics. अब अच्छी बात बुरी बात यह है, समझ लो तुम, ये बोल रहा हूं मैं कि ये जो 3 इक्वेशन है, पहले तो आपको ये 3 इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा बाय यूजिंग लॉज ऑफ फिजिक्स, उसके बाद इसको सॉल्व करना है. तो अभी हम बात कर रहे हैं ये सॉल्विंग वाला पार्ट कि कैसे सॉल्व करें. फिजिक्स की इक्वेशन क्रिएट करना वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ होगा, वो आपको समझ में आएगा जब हम फिजिक्स करेंगे. फिलहाल हम बात करेंगे कि हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके अननोन्स क्या क्या है. अननोन है x1, a1, a2, ये निकालना है. कैसे निकालें यहाँ पे? अब 3 अननोन से 3 इक्वेशंस है. एनी आइडिया हाउ टू सॉल्व फॉर दिस? एनीवन? और ये इक्वेशन मैं बता दूं बहुत हेल्पफुल है. ऐसा इक्वेशन अगर आप सॉल्व करना जानते हो और खटाखट सॉल्व करना जानते हो तो आपका टास्क बहुत आसान हो जाएगा. Question is, I am having 3 equations. 50 minus x1 equal to 5a1, 2x1 minus 30 equal to 3a2, and a1 equal to 2a2. ये 3 इक्वेशंस है मेरे पास, और मेरे पास 3 अननोन्स भी हैं. अननोन्स क्या है? x1, a1, a2. x1 is an unknown, a1 is an unknown, a2 is an unknown. So I need to solve for x1, a1, a2. सबसे पहली बात, क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं x1, a1, a2? हाँ या ना में जवाब दें. फर्स्ट पार्ट, क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं? आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि सर 3 अननोन्स है और बेसिक अलजेब्रा का रूल बोलता है कि जितने अननोन्स है अगर हमारे पास उतने इक्वेशंस है तो हम अननोन्स की वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज निकाल सकते हैं. ठीक, तो हमारे पास 3 अननोन्स है और हमारे पास 3 इक्वेशंस है. सो वी कैन सॉल्व टू गेट द अननोन्स. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें? गुड. एक ऑप्शन आ रहा है सर, देखो a1 की जगह पे हम 2a2 पुट कर देंगे. a1 की जगह पे 2a2 पुट कर देंगे. सो 1 and 2 now becomes equation in x1 and a2 only. So 2 unknowns and 2 equations. Very good thought. क्या बोला जा रहा है सुनो. Very good thought. सर हम a1 की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे, राइट? एवरीवन, अगर हम ऐसा करते हैं so what would happen? The first equation will boil down to 50 minus x1 is equal to 10a2, and दूसरा equation will boil down to 2x1 minus 30 equal to 3a2. Now is it a simple linear equation in 2 variables and 2 unknowns? Clear? अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. क्या दोनों इक्वेशन में से x1 एलिमिनेट कर दें? वो करने के लिए क्या पहले इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? करेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 2x1 इज इट इक्वल टू 20a2. एवरीवन, और दूसरा है 2x1 माइनस 30 इज इट इक्वल टू 3a2. अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करना पड़ेगा. क्या जब ऐड करेंगे क्या ये माइनस 2x1 और ये प्लस 2x1 कट जाएगा? डिड यू ऑल रिकॉग्नाइज दिस? Did you all recognize this, everyone? Very good. I got some answers as well. 100 minus 30 आ जाएगा 70. 70 is equal to 23a2.
तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70/23। समझा कि नहीं समझा बोलो, समझा एवरीवन? सो A2 की वैल्यू आ जाएगी 70/23। क्लैरिटी यही है? तो A2 की वैल्यू 70/23 आ गई, तो X1 और X2 की वैल्यू बताओ। अच्छा A2 की वैल्यू ये आ गई, तो यहां से इक्वेशन नंबर 3 से A1 की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स A2 विच इज 140/23। और एक बार A1 A2 आ गया तो X1 आ सकता है इक्वेशन नंबर 1 से या इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 1 यूज करो तो A1 की वैल्यू 5 टाइम्स A1 करना पड़ेगा, और X1 की वैल्यू निकालने के लिए 50 माइनस 5 टाइम्स A1 करना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर मैं ये A1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दूं फर्स्ट नंबर इक्वेशन में, will I get 50 minus x1 is it equal to 5 times 140/23? क्या आप कंफर्टेबल हो ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने में? अगर ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने में कंफर्टेबल हो तो एक टास्क हमारा खत्म हो जाता है, हमें सॉल्विंग आ गई। अब फ्रेमिंग इक्वेशंस का जो पार्ट है वो पार्ट फिजिक्स में आता है कि कॉन्सेप्ट लगा कि कैसे आप इक्वेशन बनाओगे, दैट यू हैव टू लर्न, दैट आई विल टीच यू एज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। बट डिड यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व दिस? एक और सवाल देखो, आई होप यू गॉट इट। इसका आंसर क्या आ जाएगा बता दो मुझे, कि 700/23 है, 15 × 23 कितना आ जाएगा? दैट इज 1 to 15 × 23 1150, राइट? क्लियर है ये? ये आ जाएगा 1150 माइनस 700, राइट, अपॉन 23। कितना आ जाएगा फिर? 450/23, राइट? विल आई गेट दिस 450/23 एज माई आंसर? यप। तो ये आ जाएगा मेरा x का वैल्यू। क्लियर है ये एवरीवन? समझा कि नहीं समझा बोलो? क्लियर है ये? ओके अब देखो, एक और सवाल देखो, आपको क्लैरिटी आएगी, सुनना ध्यान से। देखो मैंने आपके लिए एक नया इक्वेशन बनाया। अगेन मैंने कुछ सोचा दिमाग में और इक्वेशन बनाया है। अब आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मैं इसका रेफरेंस दूंगा आपको बाद में कि देखो हमने ऐसे इक्वेशन सॉल्व किए थे। अब सबसे पहले तुम यहाँ पे देखो ध्यान से, कितने अननोन्स है हमारे पास? T1 T2 A1 A2। कितने अननोन्स हैं? 4। So from basic rule of algebra, do I require 4 equations to solve for the unique values of these unknowns? What is the requirement of number of equations to solve for unique values of these unknowns? Is it 4 from basic rule of algebra? Yeah. क्या हमारे पास 4 इक्वेशन है सर, है सर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। So I'm having 4 equations to solve for these unknowns, right? अब सवाल है सॉल्व करके दिखाना है आंसर। कैसे सॉल्व करोगे? सब लोग अपने कॉपी में करो, खुद से करो, इधर उधर मत देखो, खुद से करो। अगर तुम ये कर सकते हो बस तुम्हारा काम खत्म है। ये ऐसे इक्वेशंस आपको मिलने वाले हैं, एक चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन। आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, यस और नो? 9th में पढ़ा था क्या?
पर आपकी जो समझ थी 9th में वो मोस्टली थियोरेटिकल थी। अब जब आप 11th में जाओगे तो आपने इस कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी और वहां पे आपको इक्वेशंस डेवलप करने पड़ेंगे। समझे आप? वहां पे आपको इक्वेशंस डेवलप करने पड़ेंगे। तो इक्वेशंस डेवलप करने की जो आर्ट है ये आप 11th में सीखोगे इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो आप जब वो इक्वेशंस डेवलप करोगे तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसे 4 इक्वेशंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। 4 इक्वेशंस जो आपके सामने है, ठीक है? तो ऐसा मान लो एक इक्वेशन मैंने सेटअप दिया हुआ है, आपको सब निकालनी है ये वैल्यूज। क्या क्या आ रही है बताओ, कैसे सॉल्व करोगे? T1 T2 A1 A2। देखो सॉल्व करने का एक तरीका मैं बताता हूं आपको, आप इस चीज को फील करो। क्या करो आप, T2 को यहां से उठा के क्या यहां डाल दो। सुनना, वेरी गुड। T2 को यहां से उठा के यहां डाल दो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके इक्वेशंस जो हैं, वो सेकंड वाला जो इक्वेशन है वो बदल जाएगा। 4T1 माइनस 100 इज इक्वल टू 10A2। पहला इक्वेशन वही रहा, सेकंड इक्वेशन इसमें बदल गया। आपने थर्ड को यूज किया सेकंड में तो ये हो गया, और थर्ड वाला इक्वेशन सॉरी फोर्थ वाला इक्वेशन वैसे का वैसे है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी आपने अभी सीख लिया है। तो 50 माइनस T1 इक्वल टू 5A1, 4T1 माइनस 100 इक्वल टू 10A2। क्या अब A2 की जगह पे ये देखो, फील आएगी आपको? यस, आसान है। क्या A2 की जो वैल्यू है, क्या इसको उठा के यहां पुट कर दूं? अगर मैं ऐसा करता हूं, will I get 4T1 minus 100 is equal to 10 into 2, that is 20A1। अब आप देखो, आपने 4 को यूज कर लिया, 3 को यूज कर लिया, 3 को पहले यूज किया 2 में, फिर 4 को यूज कर लिया 2 में, टू गेट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन। और अभी देखो 1 अनटच्ड है, 1 बचा हुआ है। 50 माइनस T1 इक्वल टू 5A1। अब इन दोनों की मदद से क्या आप सॉल्व करके अननोन निकाल सकते? खत्म हो गया। क्या ये क्लियर है? सो देखो ध्यान से, इनके अननोन कैसे हटाओगे आप? ये दूसरे वाला जो इक्वेशन है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। So you are getting first equation as 4T1 minus 100 is equal to 20A1। Guys, are you in sync? Are you understanding what I'm trying to say? 4T1 minus 100 equal to 20A1। और दूसरा वाला हो गया आपका 200 minus 4T1 is equal to 20A1। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन को साइड बाय साइड। So when you do this, will this 4T1 and minus 4T1 vanish because of plus and minus sign? 200 minus 100 करोगे तो 100 आएगा, और ये आ जाएगा 40A1। चमका कि नहीं चमका बोलो? तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 40। यस सर, विच इज 5 अपॉन 2। समझा क्या सबको? A1 की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 2। A1 की वैल्यू 5 अपॉन 2 आ गई तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 2A1 विच इज 5। A1 और A2 की वैल्यू आ गई, तो अब आप T1 की वैल्यू निकाल सकते हो। आपने जो A1 की वैल्यू उठाई है वो यहाँ पे पुट कर दो A1 की जगह पे, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 5 इंटू A1, और A1 की वैल्यू आप ऑलरेडी ला चुके हो 5/2, तो विच इज 100 माइनस 25 विच इज 75/2। तो T1 की वैल्यू आ गई। एक बार T1 की वैल्यू आ गई तो T2 की वैल्यू थर्ड नंबर इक्वेशन से आ जाएगी, विच इज 4 टाइम्स 2 1, इट इज 150। देखो सारे अननोन आ गए। समझा कि नहीं समझा बोलो? समझा? देखो, देखो क्या खास बात है। तो आपने 4 इक्वेशन 4 अननोन भी सॉल्व कर लिया। तो ये प्रोग्रेस होना चाहिए। क्या आप कंफर्टेबल हो ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने में? ये बहुत काम की चीजें मैं बता रहा हूँ। 100% क्लैरिटी होनी चाहिए कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, आप इस बात को फील करोगे कि एक फिजिक्स के प्रॉब्लम में पहले तो आप बेसिक इक्वेशन लगा के, बेसिक फिजिक्स लगा के ये इक्वेशंस क्रिएट करो, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए कि इक्वेशन को सॉल्व करना भी है विद इन 1 मिनट और इक्वेशंस बनाने हैं विद इन 1 मिनट। तो आपको दिख रहा है आस्क क्या है? गाइस, आर यू फीलिंग द आस्क? कि क्या आस्क है फिजिक्स में? दिस इज द आस्क। मैं बता रहा हूं, ये काम आपको किसी और सब्जेक्ट में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीइंग एन इंजीनियर आई कैन टेल यू, आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन इट। केमिस्ट्री में आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के सिवा मैक्सिमम थोड़ा बहुत लॉग यूज होगा, थोड़ा बहुत,
मैक्सिमम जगहों पे आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी पड़ेगी, बस दैट्स ऑल। बट फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फलाना ढिमका, जितना 7th 8th 9th 10th के मैथ्स है, एक्सपोनेंट्स, रेडिकल, लॉगरिथम, जितना है, कुछ भी यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। समझे आप? समझे आप? Did you understand? And particularly my ask or my instructions to NEET students is be very careful. You should be good in your standard 8, 9, 10 maths. I'm not saying you have to be master in standard 11th and 12th maths. 11th और 12th का जो मैथ्स चाहिए वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको 7th 8th 9th 10th की मैथ्स 100% क्लैरिटी चाहिए, और वो भी फास्ट करना आना चाहिए। अगर आप मैथ्स में वीक हो गाइस, ये आप कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं पाओगे। फिर आपका प्रॉब्लम क्या होगा? आपको बेसिक चीजें नहीं आ रही है, आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा है। फिजिक्स आता है, इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, जस्ट सी द प्लाइट, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। एक और सवाल ऐसा, पेट भर गया? एक और सवाल ऐसा, देखो, करो, प्रैक्टिस करो। 25 माइनस 4t1 इज इक्वल टू 2.5 a1। ठीक, फिर 2t2 minus 50 is equal to 5 times a2। t1 is equal to 2t2 and a1 is equal to 3a2। Suppose I give you these equations. Yeah, it's a decimal 2. जल्दी बताओ आंसर। आपके दिमाग में आ गया होगा क्या करना है, फट से बताओ। क्या ये उठा के यहां डाला आपने? और ये उठा के यहां डाला आपने? अगर ये काम कर लिया तो आपके 2 इक्वेशन और 2 अननोन में कन्वर्ट हो गया सवाल। हुआ क्या? 25 माइनस 8t2 equal to 7.5a2 and 2t2 minus 50 is equal to 5a2। क्या ये 2 इक्वेशन और 2 अननोन में कन्वर्ट हो गया अपना प्रॉब्लम? अब सॉल्व करना। क्या बचा है इसमें, बोलो? क्या इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4 से दोनों साइड? तो 25 माइनस 82, फास्ट, सुपर फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन, है ना? और ये उसी का फास्ट होगा जिसका बेसिक मैथ्स क्लियर है गाइस, नहीं तो इधर उधर देखते रहोगे। इज इट इक्वल टू 20a2? एवरीवन सॉल्व करो। -8 + 8 कैंसिल, 25 माइनस 200 माइनस 175 इज इट इक्वल टू 27.58। तो a2 की वैल्यू आई -175 बाई 27.5। यस, यस, 27.5। अब ये 27.5 को कैसे लिख सकते हो? 27 1/2, क्या ये आ जाएगा 55/2? ये एकदम खट से आना चाहिए, समझा क्या? 5 11, 5 3 15, 35। क्या आपका आंसर है -70/11? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? a2 की वैल्यू आ गई। एक बार a2 की वैल्यू आ गई, क्या a1 की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स a2 -210/11। एक बार a1 a2 की वैल्यू आ गई, क्या a1 की वैल्यू आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे टू गेट द वैल्यू ऑफ t1। t1 की वैल्यू आ गई, t1 की वैल्यू आ गई तो t2 की वैल्यू आ गई। क्या आप सबके पास आंसर है? अभी जल्दी बताओ। जितना फास्ट मैंने किया, क्या आप स्पीड को मैचअप कर सकते हो? क्या आप स्पीड को मैचअप कर सकते हो? कुछ भी नहीं है यार, पक्का कर सकते हो। और देखो, आप में से बहुत से लोगों ने अबैकस किया होगा,
कुछ ना कुछ वैदिक मैथमेटिक्स के ट्रिक्स जानते होगे, तो कैलकुलेशंस तो फास्ट हो ही जाती है ना। अब देखो ये छोटी सी बात है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, सुनना ध्यान से। क्या आपको ये डेसिमल को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, और वो भी खट से कर सकते हो बिना किसी के पूछे? क्या इतना मैथमेटिकल सेंस है आपका? देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, फील करना। देखो जब -175 डिवाइडेड बाय 27.5 मैंने किया, अब कोई बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है, सुनना ध्यान से, मैथमेटिकल सेंस है, सिंपल मैथमेटिकल सेंस। -175 अपॉन, कोई बच्चा बोलेगा 275 करूंगा सर, एक जीरो इधर ले लूंगा। डोंट यू थिंक यू हैव इंक्रीज्ड योर टास्क? क्योंकि अब इसको सिंप्लीफिकेशन करने में सबसे पहले आप 5 से कट करोगे, फिर बचेगा जो, फिर से 5 से कट करोगे, आपने अपना टाइम बढ़ा दिया है इस सवाल को सॉल्व करने में। लेकिन जो बच्चा स्मार्ट है वो इसको ऐसे करेगा, -175 डिवाइडेड बाय 27.5 को वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देगा, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म 27/2, और उसको वो बोलेगा 27 into 54, 55/2, तो उसको 55/2 लिख दिया। जैसे ही उसने किया, देखो कैलकुलेशन कितना आसान होगा। 11 by 55, 11 1 11, सॉरी 5 11 55, 5 3 15, 35। क्या आंसर आ गया? डायरेक्ट -70/11। जो कि यहाँ पे करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 to 3 बार आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसलिंग आउट द कॉमन टर्म्स जो आप पढ़ते हो स्टैंडर्ड 6 7 में, वो करना पड़ेगा। क्लैरिटी है? क्या ये बात समझ में आ रही है? समझे क्या? एक बेसिक बात बोलूं, सुनना ध्यान से। क्या आपको इसकी फीलिंग है कि 1.33 इज नथिंग बट इट इज 1/3? क्या आपको इसकी फीलिंग है कि 1.66 इज नथिंग बट इट इज 1/2/3? यस और नो? यस और नो? क्या आपको ये बात समझ में आती है? ये सब चीजें एकदम खट से होनी चाहिए। ऐसे हमेशा याद रखना, इन फिजिक्स मैं आपको जो बोल रहा हूँ, दीज आर सुपर ट्रिक्स, और आपको ये सब एकदम अपने साथ रखना है। और आपकी कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन पावर सुपर फास्ट होती है। 1.33 को हमेशा 1/3 लिख दिया करो, हमेशा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर को 1.33 से अगर डिवाइड करोगे, इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज। बट इफ यू डिवाइड इट बाय 1/3, तो 1/3 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दो। इसमें बदल दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्या वो आ गया 4/3? तो जब आप उसको डिवाइड करोगे ना, तो आपका काम आसान होगा। आर यू गेटिंग अ फील ऑफ थिंग्स? आपका काम आसान होगा। क्या क्लियर है ये? सो यू नीड टू डू दिस। क्लियर है ये? यू नीड टू डू दिस। 1.66 को 1/2/3 करो। सिमिलरली अगर मैं 1.25 बोलता हूँ, क्या इसको आप लिख सकते हो 1/4? अगर मैं 1.50 बोलता हूँ, क्या इसको आप लिख सकते हो 1/2? 1.75 बोलता हूँ, क्या इसको आप लिख सकते हो 1/3/4? समझे क्या? समझे क्या? क्या क्लैरिटी है? तो ये कैलकुलेशन खट से होना चाहिए, सो दैट वंस यू सी दीज नंबर, आप फट से ये सब काम कर सको। जैसे कि जैसे मैंने ये देखा, देखो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, जैसे मैंने ये देखा, मैंने इसको जैसे बोला 27/1/2, खत्म 27/1/2। देखो, तो जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा, सपोज यहाँ पे 30.50 था, तो मैं इसको लिखूंगा 31/2। उसके बाद उसको खट से कन्वर्ट कर लूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर मैंने कन्वर्ट किया कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो फिर उसमें कैंसलिंग आउट द कॉमन टर्म्स की ease of doing that increases manifold as compared to if you divide it by a decimal number। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है ये पॉइंट एवरीवन? ठीक है, ये काम करना आना चाहिए। तो कभी भी अगर आपको 1.33 है, तो आप इसको किसमें कन्वर्ट करोगे? 1/3। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आप लिटरली, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी अपना कैलकुलेशन सुपर फास्ट होगा। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट। क्या लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सॉल्व करना आ गया? आ गया? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सॉल्व करना। अच्छा, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, किस मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पसंद करोगे? मैंने आपको बताया था देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, अदर इज द फार्मूला मेथड। तो आपके लिए क्या है? गोल्डन ब्रह्मास्त्र, फार्मूला मेथड। क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के लिए हमारे पास एक लेवल ऑफ चेकिंग होना चाहिए। एंड व्हाट इज दैट लेवल ऑफ चेकिंग?
कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तभी हम उसे मीनिंगफुल वे में फैक्टराइजेशन कर पाएंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल रूट्स होंगे, और इरेशनल रूट्स को हम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इरेशनल रूट्स, हम लॉजिकली सोच नहीं पाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कि रैशनल रूट कैसे बनाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, एटलीस्ट फिजिक्स में जब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ब्रह्मास्त्र होना चाहिए, फॉर्मूला मेथड, खट से लगा दो, सोचने की जरूरत नहीं। यस, अगर प्रैक्टिस के साथ आप ये फील कर सको कि किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू 20 आ रही है तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी इजीली कर सकता हूं, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको उस चीज की फील आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो इट्स एडवाइसेबल टू ऑलवेज यूज फॉर्मूला मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है? क्लैरिटी है ये? सर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है? इसका मतलब मैं बताता हूँ, एक सवाल देता हूँ, देखो ध्यान, तुम्हें फील आएगी। देखो सपोज हमारे पास ये इक्वेशन s इज इक्वल टू ये मैंने आपको एक इक्वेशन दी, ठीक है? आपसे एक सवाल पूछा गया, फाइंड फाइंड सॉरी t when displacement is equal to 2 meters, find t when displacement is equal to 2 meters। ठीक है, आइए कैसे करें इसको। फाइंड t when displacement is equal to 2 मीटर और s is equal to 2 मीटर। इसको सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ? कैसे सॉल्व करोगे इसको? क्या आप s की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दोगे तो यू विल गेट 2 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। क्या ये समझे? अब इसको सॉल्व करना है, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझे क्या? समझे? अब इसको सॉल्व करना है तो t की दो वैल्यूज आएंगी। जो बच्चा शार्प है, क्विक है, वो सीधा सीधा देखेगा d की वैल्यू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक कर सकते हो, चेक के लिए, बट मैंने आपको सजेस्ट किया ऑलवेज गो बाय फॉर्मूला, बट चेक कर रहा हूं। बी स्क्वायर इज 400, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 40। क्या ये आ जाएगा? रूट 360। रूट 360c इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिख रहा? परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, 360 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो फिर इसको सॉल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड से इम्पॉसिबल। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? फॉर्मूला मेथड। बताओ, टी की दो वैल्यूज आएंगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दो वैल्यूज आएंगी। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। टी की एक वैल्यू आएगी 20 प्लस रूट 360/10 और दूसरी वैल्यू आएगी 20 माइनस रूट 360/10। ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है? अब ये दो वैल्यू का क्या फिजिकल मीनिंग है ये आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है? बाद में समझ में आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे ही दूं, आपने पढ़ा हुआ है एक्चुअली, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। अब देखो, दो सॉल्यूशन तो आ गया, ठीक है ना? मैथमेटिकली वी आर डन। अब देखो, अब इसका फिजिक्स का रिक्वायरमेंट समझते हैं। ये सवाल एक्चुअली मैंने क्या सोच के बनाया, मैं आपको बताता हूँ। मैं कुछ सोच रहा था जब ये सवाल मैं बना रहा था, क्या सोच रहा था मैं बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक सपोज एक बॉल लिया, इस बॉल को मैंने फेंका किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड से अप द एयर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इन एनी टाइम t, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉल एट एनी टाइम t? याद है आपने एक इक्वेशन लिख पढ़ा था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है आपको? तो ये डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन यहीं से बना है मेरा। s इज डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने, u की वैल्यू है 20, इट इज डायरेक्टेड अप। अब यहाँ पे भी बहुत बड़ा लफड़ा है। आपने जब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बनाए होंगे स्टैंडर्ड 9th में तो आपको कुछ बताया गया होगा, लेकिन साइन कन्वेंशन में आपको थोड़ा सा स्टेट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा चिंता मत करो, डिटेल में पढ़ाया जाता है फिजिक्स। ऊपर की तरफ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी जो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड हो उसको लेते हैं पॉजिटिव, और कोई भी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड हो उसको लेते हैं नेगेटिव। ऊपर की तरफ कोई भी क्वांटिटी जो डायरेक्टेड है उसको लेते हैं पॉजिटिव, और नीचे की तरफ कोई भी क्वांटिटी जो डायरेक्टेड होता है उसको लेते हैं नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है। तो 20 अपवर्ड डायरेक्टेड है, चलो +20 लिया, हाफ लिखा, बट ए की वैल्यू जो है ये -10 लेंगे बिकॉज इट्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड इंटू टी स्क्वायर। तो जब मैंने ये लिखा तो इसको सॉल्व जब किया तो मेरे पास वैल्यू आया 20t -5t स्क्वायर, दिख रहा है? यही सोच के मैंने ये इक्वेशन आपको दिया था, ठीक है? अब इसके अंदर का फिजिक्स समझो। देखो, हमें t की दो वैल्यू मिली है, 20 + √360/10 एंड 20 - √360/10। अभी चैट सेक्शन में देख रहा था, किसी बच्चे ने बोला सर टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, बट द प्रॉब्लम इज बेटा टाइम इज नॉट नेगेटिव हियर। 20 - √360 जब करोगे, √360 की वैल्यू 20 से कम है। कॉमन सेंस देखो, √360 की वैल्यू इज लेस देन 20, कैसे पता चला सर? देख, अगर मैं √400 करूं तब वो 20 होता है। अब 360 इज लेस देन 400, तो √360 विल ऑब्वियसली बी लेस देन 20। तो 20 माइनस अ क्वांटिटी लेस देन 20 अगर मैं करूं तो मेरा सम पॉजिटिव आने, मतलब नंबर जो आएगा वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी। तो ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है, नेगेटिव इसमें कोई भी नहीं है। क्या फील आई? नेगेटिव इसमें कोई भी नहीं है, समझा क्या? जिस बच्चे का ये सवाल था टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पे है ही नहीं टाइम, मतलब ये दोनों ही हमारा आंसर है, राइट? समझा क्या? गाइस यू नीड टू स्पीक, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर, हाँ सर, समझा सर, समझा सर, क्लियर है ये? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ अब इसके अंदर का फिजिक्स समझो थोड़ा सा, चिंता मत करना, थोड़ा सा समझिए, घबराना नहीं बिल्कुल, सब आता है तुम्हें। देखो, जब हम किसी गेंद को या किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, क्या ऊपर की तरफ जाता रहता है या ऊपर जाने के बाद रिटर्न आता है? तुमने कभी बॉल फेंका होगा, ऊपर ही चला जाता है या रिटर्न आता है? रिटर्न आता है सर, हाँ, रिटर्न आता है। इसका मतलब ये कुछ इस टाइप से चलता है, ये सीधा जाएगा ऊपर और फिर रिटर्न हो जाएगा, एक ही लाइन पे रिटर्न होता है, बट मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। इसको दिखाने के लिए मैंने इसको दो अलग लाइन बना दी है, बट एक ही लाइन पे जाता है और रिटर्न आता है, राइट? एक ही लाइन पे जाता है और रिटर्न आता है, यस, एग्रीड। अब सुनो ध्यान से, तो मैं ये जो दो सॉल्यूशन है, s इक्वल टू 2 मीटर, मैंने क्या बोला? फाइंड t व्हेन s इक्वल टू 2 मीटर। इसका मतलब मैं ग्राउंड से 2 मीटर की दूरी पे मैं एक लाइन खींच रहा हूं, इसके अंदर का फिजिक्स समझो। ये लाइन जो है इसकी ग्राउंड से दूरी कितनी है बेटा? 2 मीटर। तो तुम एक चीज फील करो, क्या ये गेंद इस 2 मीटर के हाइट को जाते वक्त और रिटर्न आते वक्त क्या दो टाइम क्रॉस करेगी? एक बार जाते वक्त और फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचा और फिर नीचे आ रहा है, क्या आते वक्त? क्या दो बार क्रॉस करेगी? यस। सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम गेटिंग टू सॉल्यूशंस ऑफ टी? क्या फिजिकली तुम समझ पा रहे हो? एक तो मैथमेटिकली तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके सॉल्व कर दी, फाइन, गुड, ब्रिलियंट, बट क्या तुम इसके अंदर का फिजिक्स समझ पा रहे हो कि फिजिकली तुम इसको कैसे लिंक अप करोगे? देखो, जब तुमने गेंद को फेंका, उसका 2 मीटर की हाइट, क्या वो दो बार क्रॉस करेगा भाई? फील कर, ग्राउंड से जाते वक्त ऊपर जा रहा है जब, क्या 2 मीटर की हाइट को क्रॉस करके जाएगा? मतलब वो 2 मीटर पे किसी इंस्टेंट पे रहा होगा जब वो जा रहा है ऊपर, और ऊपर जाने के बाद जब वो रिटर्न आ रहा है, क्या तब भी वो 2 मीटर को क्रॉस करेगा किसी एक अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे?
ठीक है सृष्टि, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर कॉन्सेप्ट, दीज बोथ दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव, they are not negative, these are basic things that you should not make error, क्योंकि अगर कोई बच्चा इन सब में एरर करता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फिजिक्स टीचर टू टीच हिम और हर। ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, यू शुड हैव अ गुड सेंस एज टू व्हाई आई एम सेइंग सो। देखो मैं ये बात बोल रहा हूं बट आई एम वेरी ब्लैंड इन सेइंग दिस, बट if you do not have a basic common sense of math then it becomes very difficult to perform in physics। कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कहां से ये नेगेटिव दिख रहा है आपको, कहां से ये नेगेटिव दिख रहा है बताओ मुझे, 20 माइनस रूट 360, क्या √400 इज मोर देन √360? तो ये सम तो ये तो डिफरेंस पॉजिटिव ही आ रहा है ना, नेगेटिव कहां से आया आपको, कहां से दिख रहा है आपको नेगेटिव? यू फर्स्ट सेड नेगेटिव वैल्यू, मैंने उसको रेक्टिफाई किया, फिर से आप बोल रहे हो नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं है, दोनों टाइम पॉजिटिव आ रही है। अब कोई मुझे बताएगा ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कीजिए, कौन सा वैल्यू कौन सा है, अकल लगा के बोल रहे हैं। मेरे पास दो वैल्यू ऑफ टाइम है, एक है 20 प्लस √360/10, एक है 20 माइनस √360/10, कौन सा वैल्यू कहां पे आएगा? बोलो मुझे, ये वाला जो टाइम है, ये वाला, ये एरो, ये कौन सा टाइम रिप्रेजेंट करेगा? एनीवन? 20 प्लस √360/10 या 20 माइनस √360/10? अकल लगाना पड़ेगा दोस्त, कौन सा? 20 प्लस, प्लस या माइनस वाला बोल दो, प्लस या माइनस? माइनस भाई। ओ भाई साहब अकल लगाएं, अकल अकल अकल। जब उसको ग्राउंड से जब वो जा रहा है, क्या 2 मीटर की हाइट को वो पहले क्रॉस करेगा ना भाई, फिर ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा, फिर से क्रॉस करेगा 2 मीटर की हाइट। तो जब वो अपवर्ड जर्नी में है तो क्या वो 2 मीटर की हाइट को, जो 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 लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं दिखा रहा हूं, इस एरो की बात कर रहा हूं जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, क्या ये वो टाइम होगा, क्या ये अर्लियर टाइम होगा? यू हैव लॉस्ट इट कंप्लीटली। क्या ये अर्लियर टाइम होगा इन दोनों में से? अर्लियर टाइम कौन सा है? कौन जिसका ड्यूरेशन छोटा है वही अर्लियर टाइम। किसका ड्यूरेशन छोटा है, 20 प्लस √360/10 या 20 माइनस √360/10? भाई साहब होश उड़ गया तुम लोगों के। अरे बताओ कौन सा है? ये जो सर्कल किया हुआ है कौन सा टाइम है? ये 20 माइनस √360/10 है, और ये वाला टाइम 20 प्लस √360/10 है। अकल लगाओ, समझे कि नहीं समझे? छोटी सी बात, क्या आपको समझ में आ रहा? अच्छा बेटा, मतलब दिमाग भी चलना चाहिए फिजिक्स में, ऐसे नहीं चलेगा। क्या समझा आपको? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज अ वंडरफुल थिंग, है ना? अभी मेरे को फिर से बताओ, किसी बच्चे ने मुझे बोला सर मुझे समझा नहीं क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है। देख बेटा, सुन सुन सुन, लास्ट बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ तेरे को समझ में आएगा, नहीं आना तो चाहिए। सुन ध्यान से, जब मैंने तेरे को बोला S = 20t - 5t² को सॉल्व करो, तो देख, जब S = 2 मीटर आया, तूने 2 मीटर वहां पे रखा, तूने सॉल्व कर लिया, तेरे को दो वैल्यूज मिले, है ना? मिले ना? तेरे को मैथमेटिकली तूने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड, वेरी वेल डन, ब्रिलियंट। बट मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या ये दो टाइम का तू फिजिकली इसका मीनिंग एक्वायर कर सकता है क्या? यही तो फिजिक्स की आस्क है भाई। मैथमेटिक्स इज जस्ट अ टूल टू सॉल्व एंड गेट द आंसर, बट अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको फिजिकली इंटरप्रेट तो कर। क्या जब ये असेंड कर रहा है, असेंड, असेंड मतलब ऊपर जा रहा है, क्या ये 2 मीटर के हाइट को क्रॉस करेगा पहले? बोल, क्या ये 2 मीटर के हाइट को क्रॉस करेगा पहले? करेगा सर। और 2 मीटर के हाइट को क्रॉस करने के बाद जब वो ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, क्या फिर से 2 मीटर के हाइट को क्रॉस कर रहा है वो? समझा कि नहीं समझा? समझे? बोलो। तो पहले जो क्रॉस किया, क्या वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम छोटा होगा, और बाद में जो क्रॉस किया क्या वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बड़ा होगा?
अकॉर्डिंगली आप सेट कर लो कौन सा टाइम कौन सा है, यस और नो। समझे क्या? समझे? छोटी सी बात है। तो देखो मैथ्स कैसे यूज हुआ और कैसे जो वैल्यूज आया उसको कैसे आपने फिजिकली इंटरप्रेट किया, ये बहुत बड़ी चीज होती है फिजिक्स में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? बहुत से लोग सोच रहे हैं अच्छा बेटा मतलब दिमाग तो लगाना है फिजिक्स में, बिना दिमाग लगाए बेटा ये सब्जेक्ट तो होने वाला नहीं है। हाँ या ना? यस। सर व्हाट इज 2 मीटर हाइट एंड लॉन्गेस्ट हाइट इज क्लोज टू ईच अदर? सर व्हाट इज 2 मीटर हाइट, व्हाट इफ, सर व्हाट इफ 2 मीटर हाइट एंड लॉन्गेस्ट हाइट इज क्लोज टू ईच अदर? अच्छा, गुड क्वेश्चन। देखो अब हो चुका है टाइम, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ। अगर एक गेंद को तुमने 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंक दिया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कितना मैक्सिमम हाइट उठेगी, कितना मैक्सिमम हाइट ये जाएगी, क्या तुम ये निकाल सकते हो? इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा जो आपने बेसिक पढ़ा हुआ है। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड सर। प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि सर ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, अभी आपने बोला जो भी फिजिकल क्वांटिटी ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगी क्या उसे प्लस लेंगे, ले लिया सर। हाँ वेरी गुड। एक्सेलरेशन की वैल्यू -10, डन। मैक्सिमम हाइट निकालना है सर। अच्छा ये अननोन है, ये मुझे निकालना है। अब मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंच जाएगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो ये चारों वेरिएबल, क्या कोई इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ रहा है जो इन वेरिएबल को लेके बनाया जाता है? तो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ भूसा, बच्चों को याद रहता है। 3 इक्वेशन बनाता हूँ, भूसा, भुट्टा और सुट्टा। ध्यान से देखो ये भूसा है, हम बोलते हैं ना दिमाग में भूसा भरा हुआ है, क्या ये भूसा है? भूसा है मतलब v² - u² इज इक्वल टू 2sa। भूसा है ये, ठीक है? याद रखने का सिंपल तरीका, चलो बताओ। v की वैल्यू 0², u की वैल्यू 20 का होल स्क्वायर इज 2 इंटू -10 इंटू हाइट मैक्स। तो हाइट मैक्स आया सर -20² अपॉन -20। क्या हाइट मैक्स आ रहा है 20 मीटर? ओ हो, मतलब ये 20 मीटर के मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। अच्छा, मतलब 2 मीटर को तो पक्का क्रॉस कर रही है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो इक्वेशन आपने बनाया, सुनना ध्यान से, मजा आएगा तुम्हें, मतलब वाह क्या बात है। 20t - 5t²। अगर मान लो मैंने बोलता फाइंड टाइम एट विच s इज इक्वल टू 30 मीटर, तो तुम्हारा आंसर क्या होता? अब जब तुमको पता चल गया तो बताओ क्या आंसर होता? एनीवन? कम ऑन गाइस, गिव मी एन आंसर, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन अप्लाई योर हेड। ये मौका सिर्फ फिजिक्स में मिलने वाला है और कहीं नहीं। एनीवन? मैं बताऊं, अगर तुम टी को सॉल्व करो, सॉल्व करके देख लेना, टी का जो सॉल्यूशन आएगा ये इमेजिनरी रूट्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, बिकॉज ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो बॉडी जाएगी इस इक्वेशन के हिसाब से वो कितनी है? 20 मीटर है। और आपने कितना हाइट दे दिया है एस का वैल्यू? 30 मीटर, ये पहुंच ही नहीं सकती 30 मीटर। तो जब तुम सॉल्व करोगे ना, देखो टी की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है, आ रही है क्या? डी की वैल्यू देखना <<0 आ गई, आ रही है क्या? यार तुम लोग स्लो हो यार मैथ्स में, तुम लोग अभी बोर्ड्स दिए नहीं हो, हाउ कैन यू बी सो स्लो इन मैथ्स? देखो इसका, इसको पता करने का तरीका है, अभी 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 मैं ये सब बोलना नहीं चाहता हूँ, ये सब आपको किनेमेटिक्स में आएगा, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 30 मीटर में, एक तरीका बता रहा हूँ, देखो जब 30 मीटर लेके आप सॉल्व करोगे आपका रिजल्ट क्या आएगा? वो आपका रिजल्ट आ जाएगा 5t² - 20t प्लस 30 इक्वल टू 0। b² - 4ac करो, b² - 4ac करोगे तो इट इज
20 स्क्वायर माइनस 600 इज इट कमिंग लेस देन 0? सीधा सीधा आपको दिख रहा है इमेजिनरी रूट्स आ रहा है। इमेजिनरी रूट्स आ रहा है मतलब फिजिकली ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। तब आपका दिमाग चमकना चाहिए, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 30 मीटर पहुंच ही नहीं रहा है। तब आप सोचोगे अच्छा देखो मैंने क्रॉस चेक किया 20 मीटर ही आ रहा है। क्या बात समझ में आई? आप में से जो अभी एनटीएससी देना चाहता है ना या देने की तैयारी कर रहा है उसके लिए एक अच्छा सवाल है। समझे क्या? समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? सर हाईएस्ट हाइट कितनी है ये कैसे हमेशा पता चलेगा? क्यों हमेशा फाइंड करना पड़ेगा? गुड। तो मत करो फाइंड। आयुषा सुनो मेरी बात, मत करो फाइंड, टाइम की वैल्यू निकाल लो। सुनो ध्यान से, मैथमेटिकली भी इसका सॉल्यूशन सुनो, मत करो फाइंड, टाइम की वैल्यू निकाल लो। अगर टाइम की वैल्यू रियल वैल्यूज आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है? रियल, मतलब वो रियल सॉल्यूशन मतलब हम उसको अचीव कर पा रहे हैं। और अगर टाइम की वैल्यू इमेजिनरी आ जा रही है मतलब वो रियल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब हम वो अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम 30 मीटर की हाइट जा ही नहीं पाएंगे, इसीलिए इमेजिनरी आ रहा है। चमका? चमका कि नहीं चमका बोलो? तुम्हें नहीं करना ना, ये मत करो। तुम टाइम की वैल्यू निकाल लो और टाइम की जो वैल्यू आ रही है उससे इंटरप्रेट करो। यस नो मे बी। समझा क्या? चलो आज बहुत पढ़ाई की हमने। आई होप यू लाइक द सेशन टुडे एंड विल कंटिन्यू मंडे। ठीक है? मंडे, कल और परसों क्लास नहीं है, संडे को हॉलीडे रहता है। वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे। चलो बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।